न्यूज प्रहर के प्रायोजक हैं श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। कुल्टी थाना को मिली बड़ी सफलता, हथियार सहित 4 बदमाश गिरफ्तार। आसनसोल बाजार के फुटपाथ की दुकानों में लगी आग, मची अफरा तफरी। केंद्र के जन विरोधी नीतियों के विरोध में बस स्टैंड के समक्ष जोरदार प्रदर्शन। आए दिन कुल्टी थाना क्षेत्र के विष्णु विहार में हो रहे चोरी की घटनाओं में से विष्णु विहार के बासिंदा काफी दहशत में है। हालांकि कुल्टी पुलिस इस पर नकेल कसने के प्रयास में लगी हुई है। कुछ सफलताएं भी पुलिस को मिली है, लेकिन शुक्रवार की रात इसमें एक बड़ी सफलता कुल्टी पुलिस को मिली, जब गुप्त सूत्रों से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने कुल्टी थाने के न्यामतपुर चौकी क्षेत्र से 4 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग विष्णु विहार में डकैती करने के उद्देश्य से एकत्रित हुए थे। इनके पास से एक 9 mm की पिस्टल और 2 मैगजीन, 10 राउंड गोला बारूद, एक देसी पिस्टल, एक देसी कारतूस पिस्टल और एक चाकू बरामद हुई है। हाल ही में गुप्त सूचना पर बोका बाबा रेलवे टनल पर छापा मारकर शुक्रवार की रात 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया गया था। चारों बदमाशों के नाम विश्वकर्मा जमुई निवासी, मुरारी प्रसाद, पप्पू पासवान लखीसराय निवासी, शहनवाज शाह सोनू लखीसराय निवासी, शशि कुमार प्रसाद है। मेडिकल जाँच के बाद चारों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया। कल के 25/2021 মোটামুটি 8টা সাড়ে 8 নাগাদ আমরা একটা খবর পাই। সে খবরটা হচ্ছে বোকা বাবা মেলাখোলা যে টানেলটা আছে, রেলওয়ে টানেলটা, তার নিচে 7-8 জন মিলে একটা প্রিপারেশন করছে একটা ডাকাতির। তো আমরা খবর পেয়ে সেখানে ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর পরে আমরা অ্যাপ্রিহেন্ড করি। তখন আমরা সেখানে 4 জনকে আমরা ধরতে পেরেছি এবং আরও 3-4 জন ছিল যারা সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তো আমরা তাদেরকে সার্চ করি, সার্চ করার পর আমরা কিছু অস্ত্র উদ্ধার করি। তো সেই অস্ত্রগুলোর মধ্যে আমরা একটা পিস্তল পেয়েছি, কান্ট্রিমেড পিস্তল, তাতে 2টো ম্যাগাজিন আছে এবং 10টা 9 mm লাইভ অ্যামুনিশন পাওয়া গেছে এবং আরেকটা আমরা 1 শটার কান্ট্রিমেড পিস্তল পেয়েছি এবং তাতে একটা এবং সেটা .303 ইঞ্চ যে অ্যামুনিশন, লাইভ অ্যামুনিশন, সেটাতে লোডেড ছিল এবং আরও ছুরি, আরও কিছু টুকটাক জিনিসপত্র পেয়েছি আমরা। তো সেই 4 জনকে আমরা অ্যাপ্রিহেন্ড করেছি। তাদের বিরুদ্ধে আগেও ডাকাতির অভিযোগ আছে এবং আমরা খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে তারা যে থানার অন্তর্গত বিহারের, মূলত তারা বিহারের বাসিন্দা এবং তাদের নামে ডাকাতি, অপহরণ, অ্যাটেম্প টু মার্ডার এবং আর্মসের প্রচুর কেস আছে। তো আমরা আরও খতিয়ে দেখছি তাদের মূল ইয়েটা কী ছিল, লক্ষ্যটা কী ছিল, কোথায় ডাকাতি করা ছিল, সেটা এখন আমরা তদন্ত করে দেখছি। স্যার, এটা কোথায় মেনলি ডাকাতি করার পরিকল্পনা নিয়েছিল বলে কিছু খবর পেয়েছেন স্যার? এটা তো বিষ্ণু বিহার কলোনির আশেপাশে এদেরকে দেখা গিয়েছিল। তো এবার কোথায় ডাকাতি করছিল সেটা এখনও আমরা তদন্ত সাপেক্ষ, সেটা দেখা যাচ্ছে যে আদৌ ওখানে না অন্য কোথাও ওখানে প্ল্যান করে অন্য কোথাও এক্সিকিউট করতে যাচ্ছিল, সেটা আমরা দেখছি। স্যার, দেখা যায় গত কয়েকদিন ধরে ওখানে চুরি হচ্ছিল, তাহলে কি এদের সাথে এরকম কোনো শার্ট আছে বলে মনে করছেন? সেটা এখন ক্ষতি দেখছি আমরা। আসলে চুরি এবং ডাকাতির ধরনটা দুটো আলাদা। তো সেই ক্ষেত্রে আমরা একটু খতিয়ে দেখতে হবে যে এরাই ওরা কিনা। এটা যেটুকু সূত্রে জানতে পারছি যে এখানে এদের মধ্যে একজন গুরুজি রয়েছে, জামুইয়ের যে বাসিন্দা, সে কিন্তু যেটাকে বিহার পুলিশ বা বিহারের রিপোর্টারদের সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করার পর যেটা জানতে ওনাকে শার্প শুটার। তো সেক্ষেত্রে এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক, তো যে একজন শার্প শুটার যদি ঢুকে যাচ্ছে। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে একটা চিন্তাজনক ঘটনা, কিন্তু আমরা সাকসেসফুলি তাকে ধরে ফেলেছি আর্ম সমেত। তো সেক্ষেত্রে এটা আমাদের পুলিশের যথেষ্ট কৃতিত্বের বিষয় একটা, যে আমরা তাকে ধরতে পেরেছি এবং সেক্ষেত্রে আমরা তদন্ত করছি শার্প শুটার হলে পরে সে ডাকাতিতে যোগ দিল কেন, বা কারণ এর আগেও ডাকাতির অভিযোগ আছে, ডাকাতি আগে করেছে। সুতরাং সেক্ষেত্রে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। ঠিক আছে, আমরা দেখছি ক্ষতি। Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.
आसनसोल बाजार के हाटन रोड के समीप शनिवार की दोपहर फुटपाथ के दुकानों में शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण दुकानों और ग्राहकों में अफरा तफरी मच गई। संयोग से पास ही स्थित एक बड़े दुकान में अग्निशामक यंत्र था, जिससे गैस डालकर आग पर काबू पाया गया। सूचना पाकर दमकल विभाग के कर्मी पहुंचे तथा आग बुझाया। स्थानीय दुकानदारों ने बताया कि अचानक बिजली के तारों के शॉर्ट सर्किट से चिंगारी गिरी और दुकानों में आग लग गई। 2 दुकान जल गए, लेकिन सामने स्थित बड़े दुकान की तत्परता से बड़ा हादसा टला। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि तार में इससे पहले भी 2 बार स्पार्क हुई है। बिजली विभाग को सूचित किया गया, वे लोग आकर देखें और बनाए भी, लेकिन जब तीसरी बार स्पार्क हुआ तो उनको बताया गया और वे लोग नहीं आए। इसके बाद तार में आग लग गई, जिसके कारण 2 दुकानें जल गई। गौरतलब है कि यदि अग्निशामक यंत्र से आग को काबू नहीं किया गया होता तो आसनसोल बाजार में फुटपाथ की क्या स्थिति है, क्या किसी से छिपी नहीं है। यदि आग भड़क जाती तो स्थिति बहुत भयावह हो सकती थी, लेकिन एक बड़ी दुर्घटना टल गई। তো এখানে এলাকাবাসী তো অভিযোগ অনেকবার আপনাদেরকে জানানো হয়েছে, তার সত্ত্বেও এরকম আমার তো এলটি লাইন আছে না, সেটা আপনারা ঠিক মতন কাজ করছেন? আমাদের এলটি লাইন আছে, আমাদের নিচেরটা 220, আমাদের 11,000টা আমাদের হাতে নেই। তো তাদেরকে কি খবর দেওয়া হয়েছে? 11,000? হ্যাঁ এসছে তো। कोरोना काल के दौरान विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा जरूरतमंद लोगों को सहायता प्रदान की जा रही है। सामाजिक संस्था बनपुर गुरु रामदास सोशल सिख वेलफेयर सोसाइटी द्वारा रामबान स्थित रामबान यंग मेंस ग्राउंड में सामाजिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों में नगर निगम प्रशासक बोर्ड सदस्य अभिजीत घटक, पूर्व MIC लखन ठाकुर, पूर्व पार्षद भरत दास, प्रबोध राय, सोना गुप्ता, सुरजीत सिंह मक्कड़ आदि मौजूद थे। अतिथियों ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था की काफी सराहना करते हुए अन्य सामाजिक संस्थाओं को इस महामारी के समय जरूरतमंदों की सहायता करने की अपील की। इस दौरान 300 जरूरतमंद लोगों के बीच मास्क, सैनिटाइजर व राशन का पैकेट वितरित किया गया। ভারতবর্ষে সেটাকে সামনে রেখে সামান্য খাদ্যের অভাবের জায়গাটাকে মেটানোর জন্য আমাদেরকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য তাদেরকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি এবং গুরু রামদাসের চরণে প্রণাম নিবেদন করছি। এই যাদের চিন্তাধারা হয় নিজেদের অর্থ থেকে অর্থ বাঁচিয়ে সেই সমস্ত গরিব মানুষের হাতে খাদ্য সামগ্রী তুলে দিচ্ছেন, এটা সত্যি প্রশংসনীয়। नए एक्सक्लूसिव ड्रेसों के साथ फुल्ली सैनिटाइज और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए श्री बालाजी फैशन आपका स्वागत करता है। वाजिब दरों पर फैंसी साड़ी सहित अन्य ड्रेसों की खरीदारी करें। आज ही आए बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। GT रोड ऑपोजिट सुभाष इंस्टीट्यूट, आसनसोल। नमस्कार, हम लोग कोविड-19 के लेके फुल सैनिटाइज करके स्टोर फिर से ओपन किए हैं। आप लोग हमारे यहाँ आइए, साड़ी, सूट्स, लहंगा की लुत्फ उठाइए और हमारे यहाँ सारे वेडिंग कलेक्शन भी अवेलेबल है। आसनसोल शिल्पांचल के चांदा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में 2021 के लिए प्रवेश जारी है। नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में CCTV निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसनसोल नॉर्थ पॉइंट स्कूल में। किसी भी घर की शान होती है उस घर में रखे फर्नीचर्स, और आपके सपनों के महल को आकर्षक फर्नीचर्स के साथ सजाना हो तो आप सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर गोधली। जी हाँ, गोधली समीरन राय रोड स्थित मॉडर्न फर्नीचर आपको आकर्षक फर्नीचर के रेंज वाजिब दरों पर उपलब्ध कराते हैं। हमारे यहाँ ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड फर्नीचर, सागवान वुडन आइटम जैसे बेड, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, सेंटर टेबल,
वार्डरोब के अलावा स्टील अलमीरा, प्लास्टिक चेयर, सोफा के फुल रेंज सहित कई तरह के फर्नीचर बाजार से कम दरों पर इजी फाइनेंस के साथ पाए जाते हैं। तो घर को आकर्षक बनाना हो या शादी के लिए फर्नीचर लेना हो, सीधे चले आए मॉडर्न फर्नीचर, गोदली, समीरन राय रोड, गुरुद्वारा के करीब, आसनसोल। विशेष जानकारी के लिए कॉल करें 8927603597। सीटू से संबद्ध एबीके मेटल एंड इंजीनियरिंग वर्कर्स यूनियन सारा भारत कृषक सभा द्वारा कृषि कानून सेल के कोलकाता स्थित एंड मटेरियल डिवीजन की मांग करने, कोरोना काल में गरीब लोगों को सहायता प्रदान आदि करने की मांगों को लेकर बर्नपुर बस स्टैंड के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सीटू कर्मी समर्थकों ने केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के विरोध में जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान सीटू नेता अरविंद घोष, दीपायन राय, अंशुमान मुखर्जी, पार्थ सेन गुप्ता, सपन मित्रा सहित काफी संख्या में सीटू कर्मी समर्थक मौजूद थे। কানুন বাতিল করতে হবে অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইন তুলে দিয়ে সমস্ত কর্পোরেটের হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে সমস্ত মানুষ Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. तृणमूल महिला कांग्रेस आसनसोल दक्षिण टाउन द्वारा बर्नपुर पुराना हाट में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अतिथियों में नगर निगम प्रशासक बोर्ड सदस्य अभिजीत घटक, पूर्व पार्षद गुरदास चटर्जी, विनोद यादव, तृणमूल नेता वी शिवदासन दासु, उत्पल सेन आदि उपस्थित थे। अतिथियों ने रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। शिविर में 30 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। तृणमूल महिला ब्लॉक अध्यक्ष सोना गुप्ता ने बताया कि शिविर में तृणमूल कर्मियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर इसे सफल बनाया। আজকে আমাদের আসানসোল সাউথে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের থেকে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প করা হয়েছে এবং সবাই এই ক্যাম্পে সকলে উপস্থিত হয়েছেন, এসছেন। প্রত্যেকে আমাদের এই ক্যাম্প সাকসেসফুল। তো এখানে আমাদের এসছিলেন লক্ষণ ঠাকুর। आसनसोल के गुरु गोविंद नगर गुरुद्वारा कमेटी के एक प्रतिनिधि मंडल शनिवार को राज्य के कानून एवं लोक निर्माण मंत्री मलय घटक से उनके आवास पर मुलाकात कर उन्हें एक मांग पत्र सौंपा। मंत्री को मांग पत्र सौंपने के बाद प्रतिनिधि मंडल के सदस्य सुखविंदर सिंह ने बताया कि आसनसोल गुरु गोविंद नगर गुरुद्वारा कमेटी का एक प्रतिनिधि मंडल मंत्री मलय घटक से मुलाकात किया और उन्हें अपनी मांगों का एक पत्र सौंपा। इस पत्र में मांग की गई है कि गुरु गोविंद नगर गुरुद्वारा में एक सामूहिक भवन बनाया जाए, क्योंकि बाहर से जो लोग आते हैं उनके रहने की जगह नहीं है। बाहर से बच्चे जो आते हैं उनको वहां रखा जाएगा। मंत्री स्वयं गुरुद्वारा का निरीक्षण करके आए हैं। इसके अलावा हम लोगों ने मांग की है कि गुरु गोविंद नगर में ही कोरोना का मुफ्त वैक्सीन शिविर लगाया जाए। मंत्री ने हमारी बातों को काफी ध्यान से और गंभीरता पूर्वक सुना। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वे इसके लिए प्रयास करेंगे। हमारे जो मंत्री साहब हैं उनको एक हम लोग लेटर दिए हैं, डिमांड दिए हैं, जो कि गोविंद नगर में हम लोग चाहते हैं जो एक बड़ा कम्युनिटी हॉल बने, जिसमें कि आने वाले समय में वो सेंटर जो पॉइंट है, कोई भी किधर से आए वहाँ कम से कम उसको रहने की जगह हो और सारा कोई भी ब्याह शादी में जो है ये हो। इसीलिए हम लोग एक दिए हैं जो बड़ा कम्युनिटी सेंटर का। साथ ही साथ वैक्सीन के लिए भी हम लोग बोले हैं, एक लिस्ट दिए हैं जो हमारे वहाँ वैक्सीन नहीं हुआ है, जल्द से जल्द वैक्सीन भी हो। तो मंत्री जी हम लोग की सारी बातें ध्यान से सुने। इसके बाद में हम लोग को बोले हैं जी ठीक है, हम लोग इसके बारे में ध्यान देंगे, उचित कार्रवाई करेंगे।